Just remind me of the recordings, है ना, तो बाद में you can watch the lectures. So is it clear to everyone? Top down parsers. मतलब अभी पढ़ेंगे तो वैसे ओवरव्यू दे रहा था बस. Now suppose for the same string I want to create a bottom up parser. So what we were doing in the top down parser? For in top down parser we started with the start symbol s, and we have to reach till here in top down parser. Top से bottom तक आना है. In bottom up parser we have to start with the string and reach the start symbol. Means we will start with the string a b b c d e and we will try to reach the start symbol s. यहाँ तक पहुंचना. Fine. Now here again this bottom up parser will also work from left to right. Okay, this will also scan the input from left to right. But when you are scanning the input from left to right here, how many options do you have first? Either you reduce kaise karna hai? Whatever substring you want to reduce. Substring means a small portion among this whole string. A is a substring, B is a substring, AB is a substring, ABB is a substring, है ना, substring. So whatever substring you want to reduce, you have to check on the right hand side of your grammar if that exists as a whole or not. For example, I started reading from left to right. I got a first string, substring. But does A exist on the right hand side alone? No. So I cannot expand A. Then I see B. Yes, single B exists here, right? Single B exists as a alone. So I can expand this single B, first one. I can also expand this single B also, right? This single B also is appearing. So this single B can also be expanded. Or third option I have, I can expand this small d into capital B. ये भी एक option है, isn't it? Right? Any doubts in this? You have one option for this, one option for this, one option for this. यही तीन option है खाली. इन्हीं तीन को reduce कर सकते हैं अभी हम लोग. Right? These are known as handles. The substring that you want to. No. We are not following leftmost derivation. We are just scanning the input from left to right. Only we are scanning, मतलब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक रहे हैं. लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन नहीं कर रहे. यहाँ पे हम लोग रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं. जहां पे कल क्लास खत्म की थी बताया था ना, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन होगा यहाँ पे. अभी देखते हैं वो फिर से. आई विल रिवाइज, है ना. वी आर स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. टॉप डाउन पार्सर आल्सो स्कैन्स द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बॉटम अप पार्सर आल्सो स्कैन्स द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मतलब पढ़ोगे ऐसे 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 चलेगा. रीडिंग विल बी लाइक दिस. पर रीडिंग विल बी लाइक दिस का मतलब ये नहीं कि जो पहला मिल गया उसी को रिड्यूस कर देंगे. नो, हो सकता है यहाँ पे इस डी को एक्सपैंड करने. देखो बॉटम अप पार्सर में सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि हो सकता है तुम यू चूज अ रॉन्ग वेरिएबल. यहाँ पे हो सकता है यू एक्सपैंड दिस डी टू कैपिटल बी. सबसे पहले यही कर दो तुम. और ऐसा करोगे देन यू कैन नॉट रीच दिस स्टार्ट सिंबल. यू कैन नेवर रीच दिस स्टार्ट सिंबल. ओके, so this is the issue with bottom up parser, that if you have reduced the wrong string substring, you will never reach the start symbol. Okay, for example here in the first case I have three options. Either I can reduce this b to capital A, I can reduce this small b to capital A, or I can reduce this small d to capital B. तीन ऑप्शन है मेरे पास. बट इसमें से if I reduce this or this, the answer will be wrong. So these two are not वैलिड हैंडल्स. इनको हैंडल्स बोलते हैं. जिस सबस्ट्रिंग को रिड्यूस कर रहे हो दे आर नोन एज हैंडल्स. इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब बॉटम अप पार्सर्स में आएंगे. ठीक है. सो दिस इज द ओनली करेक्ट हैंडल आई हैव, दिस स्मॉल बी. सो दिस स्मॉल बी विल बी रिड्यूस टू, किसमें रिड्यूस होगा? कैपिटल ए में. दिस विल बी रिड्यूस टू कैपिटल ए. स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई. दिस विल बी माई स्ट्रिंग आफ्टर द फर्स्ट रिडक्शन. Now again the bottom of parser will start from the left. फिर से यहां से स्टार्ट करेगा. अब यहां कितने ऑप्शन है मेरे पास? Either again I can reduce this small b to capital A, I can reduce this small d to capital B, or I can reduce this ABC to capital. ये तीन ऑप्शन है मेरे पास. I have three handles at this point. Is this clear to everyone? इसके बाद कोई ऑप्शन है किसी के पास? In this substring, in this whole string, I have three options. Either I can reduce small b, this small b, or I can reduce this small d, or I can reduce this ABC.
मीन्स यू हैव टू फॉर्म दी सबस्ट्रिंग्स जो रिड्यूस कर सकते हो। वो कैसे पता चलेगा? राइट हैंड साइड पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी से पता चलेगा। Here on the right hand side, ABC is existing, B is existing, D is existing, और ऊपर वाला तो अभी तक आया ही नहीं है। So we have three options. Is it clear to everyone? इसमें डाउट है किसी को? Clear? But these two will be a wrong handles. Yeah, we have reduced. अभी ये जो I'm saying you कि ये दोनों गलत है, ये सही है, ये मुझे कैसे पता है ना? So there are rules for that. When we will see bottom up parser, we will see all the rules कि कैसे पता कि ABC ही correct handle है, कैसे पता है BD गलत handle है step पे, है ना? How to do handle pruning, that is a thing in bottom up parser. We will see in detail there. So only valid string or valid handle, these are known as handles. B is a handle, D is a handle, ABC is a handle. So which is your correct handle? ABC is the correct handle. So now I will reduce ABC to capital A. So this will become D, E. Now how many options I have in this step? Either I can reduce this small d to capital B. एक ही ऑप्शन है और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे in this string. Now this is known as sentinel form. बताया था ना, bottom up parsers are also known as right sequential form. So this is also known as sequential or sentential form. ये जो बचा, जो ये पूरा string जो अब बच रहा है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन है डी के सिवा? इस पूरे स्ट्रिंग में कोई और ऑप्शन देखो? स्मॉल ए डजंट एग्जिस्ट, कैपिटल ए डजंट एग्जिस्ट अलोन, स्मॉल ई डजंट एग्जिस्ट अलोन, और कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे डजंट एग्जिस्ट अलोन. सो ओनली ऑप्शन इज स्मॉल डी. सो आई हैव टू एक्सपैंड दिस स्मॉल डी इनटू किसमें? कैपिटल बी में. सो ये हो जाएगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ई. अब यहाँ पे क्या ऑप्शन? ये तो सीधा सीधा ये रिड्यूस हो जा रहा है ना, राइट? दिस होल थिंग इज गेटिंग रिड्यूस टू कैपिटल एस. वैसे भी यहाँ कोई ऑप्शन था भी नहीं, ओनली वैलिड पॉसिबल स्ट्रिंग वाज दिस ओनली, और कोई स्ट्रिंग यहाँ पे पॉसिबल थी भी नहीं, राइट? So this is how we have performed the bottom up passes. These are known as handles. We have to choose the correct handle. For example, correct handle for first was this, correct handle for second was this, correct handle for third was this, correct handle for fourth was this. And to choose this correct handle, how we will choose the correct handle, we will see later. That is known as handle pruning. Handle pruning. Fine. अब इसी को suppose for this same grammar and the same string, I ask you to write a rightmost derivation. कि इस string के लिए एक rightmost derivation लिखो, तो कैसे लिखोगे? You will start with the start symbol, small a, capital B, small e. I'm asking you a rightmost derivation. So this is the rightmost variable. So this B will be expanded to D, this D. Now which is my rightmost variable? This capital A. So this capital A now will be expanded to A, B, C, D, E, है ना, इस प्रोडक्शन से. Now which is my rightmost variable? This capital A is my rightmost variable. Now this will be expanded to B. So A, B, B, C, D, E. This is the string that we got. This is the rightmost derivation. This is the rightmost derivation. And if you observe this bottom up parser, what it has done, it has performed the rightmost derivation but in the reverse order. ऐसे perform कर दिया इसने rightmost derivation. पर देखो rightmost derivation ही किया है. This was the first string. This was the second step or second reduction. This was the third reduction. This was the fourth reduction. Isn't it? Right? So that's why we say that a bottom up parser does reverse of rightmost derivation. Bottom up parser does reverse of rightmost derivation. क्योंकि rightmost derivation normal ये होता, but we are performing it in a reverse order. Okay, so this was a basic overview regarding top-down parser and bottom-up parsers. Fine, clear to everyone? Now we will start with the parsers one by one. So for parsers, you have seen that there is top-down parser, there is bottom-up parser. Bottom-up parsers को अभी side में रखते हैं.
In top-down parsers, again, you have seen that top-down parser with backtracking and top-down parsers without backtracking, right? Top-down parser without backtracking, again, it has two parts: recursive descent parsers and non-recursive descent parsers. These are also known as LL parsers. Okay. So if I talk just regarding your syllabus, actually you have only LL parsers in your syllabus, है ना? ये और ये नहीं है. Recursive descent parsers and top-down parsers with backtracking is not in your syllabus, but still I will teach you. पढ़ रहे हो तो पूरा ही खत्म करेंगे. ठीक है, आधा पढ़ाने का क्या मतलब है? So we will see everything, but first let's start with the LL parsers. Fine. So just keep the hierarchy in mind. ये आया कहाँ से? टॉप डाउन पार्सर में टॉप पार्सर्स के अंदर टॉप डाउन पार्सर्स में टॉप डाउन पार्सर्स विदाउट बैकट्रैकिंग, उसमें देयर इज अ पार्सर नोन एज नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर्स दैट आर आल्सो नोन एज एलएल पार्सर्स. ओके, क्लियर? कोई डाउट है? नाउ वी विल स्टार्ट विद एलएल पार्सर्स. सबसे पहले मतलब क्या है? द फर्स्ट एल, this stands for scanning the input from left to right, just like what we are doing till now. Means whatever input string we are reading, जिसके लिए parse tree बनाना है, that input string will be read from left to right. This second L means you will perform the leftmost derivation. अभी देखा हमने टॉप डाउन पार्स जब क्रिएट किया, that the parse tree is created using leftmost derivation, so you will perform leftmost derivation. This K means number of look aheads, मतलब पार्सर कितने सिंबल देखेगा एक बार में बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. फॉर एग्जांपल, इफ योर इनपुट स्ट्रिंग इज सपोज ए बी सी डी ई, दिस इज योर इनपुट स्ट्रिंग एंड पार्सर इज करेंटली एट ए. सो क्या वो एक सिंगल इनपुट को देख के डिसीजन लेगा कि अब कौन सा प्रोडक्शन रिड्यूस करना है, या वो एक साथ दो इनपुट को देख के डिसीजन लेगा कि अब कौन सा प्रोडक्शन रिड्यूस करना है, या वो एक साथ तीन देखेगा, कितने देखेगा? So this K means the number of lookaheads. How many symbols in your input string the parser will see before taking any decision. Generally it is LL1 only, but it can be LLK. LLK तक जा सकता है, जितने चाहो देख सकते हो. Got it? So first L means you will scan the input from left to right. Second L means we will perform leftmost derivation. K means number of lookaheads, or how many symbols the parser will see before taking any decision. Parser को decision लेना है ना. Suppose parser is sitting here. अभी क्या हमने देखा था उस ग्रामर में? पार्सर के पास कंफ्यूजन क्या आया था टॉप डाउन पार्सर में कि ए के पास दो प्रोडक्शंस थे. ए वाज हैविंग टू प्रोडक्शंस, सपोज ए बी सी एंड अदर प्रोडक्शन इज बी. ए वाज हैविंग टू प्रोडक्शंस, सो एट दिस पॉइंट टॉप डाउन पार्सर शुड यूज दिस प्रोडक्शन और दिस प्रोडक्शन. ये कंफ्यूजन है टॉप डाउन पार्सर के पास. अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो एक बार में कितने सिंबल देखेगा? विल इट सी ओनली स्मॉल ए, मतलब विल इट सी ओनली फर्स्ट सिंबल, or will it see two symbols, or will it see three symbols? नहीं दिव्या, it can see anything. I'm just telling कि वो कितने देखेगा. ये उसके पास चांस, ये उसके पास ऑप्शंस है with the help of K. Generally we keep LL at 1 only, okay, because that is the simplest thing and this is one of the simplest parsers to implement also. बाकी सारे parsers इतने आसान नहीं है कोड करने में. okay, compiler design की actually एक lab भी होती है. when I was doing my BTech I did a lab. आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट अगर लैब होती तो यू वुड हैव इम्प्लीमेंटेड. टिल नाउ यू वुड हैव इम्प्लीमेंटेड द लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिंटैक्स एनालिसिस में LL1 पार्सर से इंप्लीमेंट करवाते, बिकॉज दैट इज द सिंपलेस्ट. बाकी सब कॉम्प्लिकेटेड है कोड करने में. ओके, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस यूज दिस LL1 पार्सर्स ओनली. इफ यू आर वेरी श्योर दैट योर ग्रामर इज अनएम्बिगुअस देन ओनली. ओके, फॉर एग्जांपल कभी कभी सी में डैंगलिंग एस की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या होती है, सो उसमें जनरली अनएम्बिगुअस ग्रामर नहीं देते हैं, वी फीड द एम्बिगुअस ग्रामर ओनली, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है. To check the dangling as problem, you need to create different parse trees, क्योंकि different varieties of options है यहाँ, right? But if you are very sure that okay, I have a very unambiguous grammar, the grammar is very clean. If your grammar is clean, then there is no sense, right, in making any complicated parser. You will create the simplest parser. Fine. Now,
what is the structure for this LL parser? अब ये इसका structure होगा कैसे, दिखेगा कैसे? So you will have one stack. Obviously we are talking about syntax analysis पे, so you will have a ओके इसमें सारे ऑपरेशंस होंगे पास ट्री बनाने के लिए, कौन सा प्रोडक्शन कब अंदर जा रहा है, कौन सा पुश हो रहा है, कौन सा एलिमेंट पॉप हो रहा है, ऑल दी ऑपरेशंस दैट विल बी परफॉर्म इन द स्टैक. Okay, and the bottom of the stack will be a dollar symbol. Fine. Then you would have, suppose this is your string, input string a b c d. For this input string you have one grammar g. Now you have to store this input string also, the stream of tokens that is sent by the lexical analysis. So you will have a buffer known as the input buffer. This buffer will store your input string a b c d e, and the last or the bottom of the input buffer will also contain a dollar. This is to match कि stack और buffer कब खाली हो गए. Stop भी करना होगा ना जब when you are creating a parse tree. So you have to check that when $$ matches, now everything is finished. जब तक मैच नहीं हुए मतलब stack या input buffer में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है पहले से. That is why the bottom of the stack will also contain dollar and input string will also contain dollar. Means in real life or while implementing, this input string will be followed by a dollar. This is very important point which I am making right now. Just keep this thing in mind. Just in 10 minutes we will come back to it. The input string will be followed by a dollar. It is to match with the stack dollar. Clear? Everyone? ठीक है ना? Now ये तो tools हो गए जो हम लोग यूज करेंगे. Now the main code for the LL parser which you will write will be here. This will be your algorithm for the LL parser. जो भी algorithm you want to write, you will write here. And the soul of the LL parser, the crux of this whole thing, LL parser, will be a parsing table. Take notes with me, right? Will be a parsing table. Means to run this algorithm, you need this parsing table. Clear? Right? And also the input buffer. So this algorithm will interact with both of them. So this is a basic structure of a LL parser. You will have a stack. The bottom of the stack will be a dollar symbol. Means a empty stack basically. Empty stack is a dollar symbol. You will have an input buffer to store the string. Again, the string will be followed by dollar, or you can say the input buffer bottom is a dollar symbol. This will be your main algorithm of LL1 parser, which will obviously take the input buffer and the soul. This is the crux of your LL parser. That is a parsing table. If you create this parsing table wrong, then definitely the parse tree will be created because you have written an algorithm, but that will be a wrong parse tree. This parsing table will decide कि अगर आप इस जगह फंसे हो, if you are stranded at this location and you want to ask whether for A which production I should use. A के पास दो production थी ना, so you want to ask at this point that whether I should use this production or I should use this production. This parsing table will only tell you. This is the whole crux of your LL parser. अब तक किसी को डाउट? Any doubts? Fine. Now to create this parse table, we need two functions. First, अगर किसी को नींद आ रही है, I'm giving you 3 to 4 minutes. Just go wash your face and come back. Because सारी इंद्रियां खोल के अब सुनना जो आगे पढ़ाना है मुझे next half an hour. You want a 3 minute break? Go wash your face and then come back. Because ये यहाँ मिस हो गया तो पूरा गड़बड़ा जाएगा आगे का. Okay? Take a 3-4 minutes break and then come.
Fine, everyone is back. Okay. So we have seen that for LL parsers, you have a stack, you have an input buffer, जहाँ पे input store होगा. You have the main LL1 algorithm or LLK algorithm, whatever you want to call it as. Then the main crux is the parsing table. To create this parsing table, you need two functions. First is the first, and second is the follow. These two functions you have to calculate. If you can calculate these two functions, parsing table will be created automatically. If you make any mistake in the first and follow, the parsing table will be wrong. Then doesn't matter what algorithm you have written, automatically the answer will be wrong for the whole parse tree. Now, what is this first and follow? Okay, there is a mathematical definition for this. I will not go into that right now. Let's start with the example. Suppose you have a string s tends to small a, small b, epsilon. सबसे पहले फर्स्ट की बात करेंगे. Okay, just listen to it very carefully. Full सारी इंद्रियां खोल के सुनना सब. फर्स्ट का मतलब होता है first will be of every variable. While writing a grammar, I have told you that if a grammar is of the kind A tends to alpha, then these are your vertices or non-terminals, and these are your terminals, whatever is on the right hand side, right? So first of a variable like s, if I want to calculate first of s, it means if I derive all the possible strings from s, what will be the non-terminals that will for sure exist there? If I try to derive all the strings from s, पहली string, if I want to derive all these strings from s, if I want to derive all these strings from s, so यही तीन option है यहाँ पे. If I derive all these strings from s, what will be the non-terminal or the first symbol that will for sure exist? क्या है इस केस में? S. I want to calculate first of s. I want to calculate first of s. First of s का मतलब है if you are expanding s, if you are deriving s like this, what will be the non-terminals? ये सब that will be for sure there in the starting of every string. तो क्या होगा first of s इस केस में? If I either I can write s tends to a, or I can write s tends to b, or I can write s tends to alpha. ये तीन ही ऑप्शंस है मेरे पास. मतलब फर्स्ट ऑफ s क्या होगा? Either small a, small b or epsilon. Isn't it? Let's take another example. Suppose I have written a string s tends to small a capital A, small b capital B, epsilon capital A tends to small b. Now I want to calculate first of s and I also want to calculate first of a. दोनों का first निकालना है. First of s means if I expand s, if I write all the possible strings that can be derived from s, if I want to derive all the possible strings from s, what will be the first symbol of them? तो s से अगर मैं suppose ये string derive करूं, what will be the first symbol that will be for sure? Small a. If I derive from s small b capital B, what will be the first symbol that will be there for sure? Small b. या तो खाली epsilon. So the first of s will be small a, small b, epsilon. Similarly with a, if I write all the possible strings that can be derived with a, what will be the first symbol that will exist? कोई ऑप्शन नहीं, या तो b ही है. So b will be the option. Got it? Let's take another example. Suppose this is my grammar. S tends to small a, capital A,
capital B, capital C, capital D. A tends to small b, B tends to small c, C tends to small d, D tends to small e. I want to calculate first of all the variables. So what will be the first of S? First of A, first of B, first of C, first of D. So first of S means if I write all the possible strings from S, what will be the symbol that will be for sure? खाली small a होगा first of S, right? चाहे S से you derive anything, the first symbol that will be there will be only small a. चाहे ये ABCD को कुछ भी expand कर दो, the first symbol will be small a always, isn't it? D, R, E और B और BC क्या क्या लिख दिया सबने? First tell me the first of S. First of S क्या है? Only small a. Is it clear to everyone? Because whatever string you want to derive from S, only small a will be there in the starting. और कुछ नहीं हो सकता. भले ही ABCD को कुछ भी expand कर दो, small a will always be there in the front. So the first of S is only small a. बाकी सब तो आसान. First of A is you can see small b. First of B you can see small c. First of C you can see small d. First of D you can see small e. Is it clear to everyone? अच्छा. Now let's say you don't have small a here, you have a epsilon here. Now I again want to calculate the first of S. जब मैं पूछूंगा then you guys answer on this, है ना, chat box में. जब मैं पूछूंगा तब आंसर करो. F of B, F of C, F of D. Now you start answering me. What will be the first of D? First tell me that. E. ठीक है, सही. What will be the first of C? D. ये रुको रुको, किसका ये कैपिटल ई स्मॉल ई किसका है? अंशिका. कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई कहाँ है? Okay, so first of capital B will be, yeah, okay, first of capital B will be, obviously you have only one option, C. First of A will be, tell me, first of A, B and epsilon. Now let's go to S. What will be the first of S? First of S will be whatever is coming in the first of this whole string is coming in front of ABCD. I am deriving S, A, B, C, D. This is from my S. What will be the first of S? जो यहाँ पे आएगा, first symbol. So can I say first of S will be first of ABCD? Yes. First of S will be first of ABCD, right? And first of ABCD is nothing but first of A. First of ABCD is nothing but first of A. ABCD के आगे क्या आएगा? जो A के आगे आएगा. First of A, right? So what is first of A? First of A is B and epsilon. So first of S जो होगा वो B तो होगा ही, but epsilon नहीं लिखोगे यहाँ. You will put epsilon in place of A. You will put epsilon in place of A. तो उससे क्या हुआ? When you put epsilon in place of A, this part is removed. Epsilon A की जगह रखोगे मतलब A गायब हो गया. Now what is remaining? BCD. So now the first of S will be first of BCD, and first of BCD is first of B. That is C. So B comma C. Is it clear to everyone? Originally we were having ABCD. So the first of S will be first of ABCD. First of ABCD is nothing but first of A. मतलब यहाँ पे क्या आएगा? तो फर्स्ट ऑफ ए में दो ऑप्शन है, या तो ए आ सकता है स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल बी, या तो स्मॉल बी आ सकता है. तो स्मॉल बी लिख दिया फर्स्ट ऑफ एस. फर्स्ट ऑफ एस कैन बी स्मॉल बी. नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन है कि ए कैन बी एप्सिलॉन आल्सो. तो अगर ए की जगह एप्सिलॉन डाल दूंगा सो दिस विल बी रिमूव्ड, ये यहां से गायब हो जाएगा. ओनली बीसीडी विल बी रिमेनिंग. सो फर्स्ट ऑफ एस विल बिकम फर्स्ट ऑफ बीसीडी, जो कि है सी. मींस सी विल ऑलवेज कम. सो आइदर यू हैव दिस ऑप्शन और यू हैव दिस ऑप्शन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक भी अच्छा इसको समझ नहीं आया ये.
Yeah. No. See, I want to write, why would place epsilon? Yeah. See, what is the first of S? First of S is first of ABCD, राइट? फर्स्ट ऑफ एस इज जो भी यहां आएगा, हमें क्या फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? एस से मैं कोई भी स्ट्रिंग डिराइव करूं, व्हाट नॉन टर्मिनल शुड कम फर्स्ट। तो यहाँ पे अब अभी तक डायरेक्टली हमें नॉन टर्मिनल मिल रहा था, स्मॉल बी तो सीधे लिख रहे थे, अब की एक वर्टेक्स मिल रहा है, सो वी हैव टू एक्सपैंड दिस। यस शशांक, अगर वहां पे एप्सिलॉन नहीं होता तो स्मॉल बी होता, है ना? अब चलो पहले एप्सिलॉन हटा के ये केस देख लो। सपोज देयर इज नो एप्सिलॉन एंड दिस इज द ग्रामर आई हैव गिवन यू, एस टेंड्स टू कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, बाकी ये सब लिखा हुआ है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस? मतलब एस से जब कुछ भी डिराइव कर रहे हो तो व्हाट विल बी द सिलेक्ट विल फॉर श्योर कम, व्हाट विल बी द नॉन टर्मिनल विल फॉर श्योर कम? एस से ये डिराइव कर सकते हो प्रोडक्शन, यू कैन डिराइव ओनली दिस प्रोडक्शन। अब ऑब्वियसली यहाँ पे पहला वर्टेक्स है, सो द फर्स्ट ऑफ एस विल बी द फर्स्ट ऑफ ए ओनली, जो भी ए का फर्स्ट होगा। गेटिंग इट नमन ऋषभ? फर्स्ट ऑफ एस विल बी जो भी ए का फर्स्ट होगा ना, वही स्ट्रिंग होगी। इट्स लाइक दिस, यू आर राइटिंग इट लाइक दिस, ए बी सी डी। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ एस, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ एस क्या आएगा? जो फर्स्ट ऑफ ए होगा। सो ए कैन बी रिड्यूस टू स्मॉल बी। अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा, स्मॉल बी आगे रिड्यूस होता रहता तो हम और आगे जाते, बट स्मॉल बी स्टॉप्ड हियर, सो द फर्स्ट ऑफ एस इज स्मॉल बी। बट सपोज देयर इज एप्सिलॉन आल्सो हियर, सो स्मॉल बी तो होगा, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज वन पॉसिबिलिटी दैट फर्स्ट ऑफ एस कैन बी स्मॉल बी। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ए या तो स्मॉल बी हो रहा है या तो एप्सिलॉन भी हो रहा है, राइट? फर्स्ट ऑफ ए इज एप्सिलॉन आल्सो, सो यू विल पुट एप्सिलॉन आल्सो इन प्लेस ऑफ ए। एप्सिलॉन फर्स्ट में लिख नहीं दोगे एस में सीधे, एप्सिलॉन पुट करते जाओगे जब तक रिड्यूस हो रहा है। गेटिंग इट? तो ए का फर्स्ट या तो बी है या तो एप्सिलॉन है, इसलिए एस का फर्स्ट भी या तो बी होगा, और एप्सिलॉन सीधे नहीं बोल दोगे, एप्सिलॉन पुट करोगे ए की जगह यहाँ पे। तो जैसे ही ए की जगह एप्सिलॉन पुट करोगे क्या होगा? ए विल बी रिमूव्ड, ए गायब हो जाएगा। गेटिंग इट ऋषभ? एस का फर्स्ट क्या था? ए बी सी डी, मतलब जो ए का फर्स्ट होगा। ए के फर्स्ट में दो ऑप्शन है, या तो स्मॉल बी है नहीं तो एप्सिलॉन है, तो स्मॉल बी तो सीधा सीधा एस का भी फर्स्ट बन गया, बट एप्सिलॉन सीधे एस का फर्स्ट नहीं बनाओगे, अभी एप्सिलॉन यहाँ पुट करोगे, देखोगे और कितना रिड्यूस हो सकता है। तो जैसे ही एप्सिलॉन यहाँ पुट किया, ए वॉज वेनिस्ड, ए गॉट वेनिस्ड, ए मूव हो गया। नाउ यू आर रिमेनिंग विद बीसीडी, सो द फर्स्ट ऑफ एस विल बी फर्स्ट ऑफ बीसीडी, यानी कि फर्स्ट ऑफ बी। और फर्स्ट ऑफ बी क्या है? सी। देखो फर्स्ट मींस जब इस एस को डिराइव करोगे तो क्या पक्का पक्का मिलने वाला है। तो यू थिंक योर सेल्फ, अभी क्या एस से एप्सिलॉन मिल सकता है? अगर ए के आगे बी और एप्सिलॉन लिखा है, क्या कभी एस को यू विल एक्सपैंड, यू विल गेट एप्सिलॉन? पहला ऑप्शन तो ये है, यू एक्सपेंडेड एस, यू गॉट एबीसीडी। फर्स्ट ऑप्शन है कि ए को बी कर दो, अब आगे तुम कुछ भी करते रहो, फर्स्ट नॉन टर्मिनल विल बी बी फॉर श्योर इन एस। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? एस टेंड्स टू स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सी कैपिटल डी, इस ए को एप्सिलॉन कर दो। तो इस ए को एप्सिलॉन करने से फर्स्ट का एस का फर्स्ट एप्सिलॉन थोड़ी बोलोगे, जैसे एप्सिलॉन पुट करोगे तो गायब हो जाएगा ना, ओनली दिस पार्ट विल रिमेन। तो अब इसका जो फर्स्ट है वो बन जाएगा एस का फर्स्ट। इज इट क्लियर नमन ऋषभ? अभी और एग्जांपल देखेंगे, अभी सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं। नाउ हियर अगेन आल्सो यू हैव एप्सिलॉन, टेल मी द फर्स्ट ऑफ एस डायरेक्टली। एस टेंड्स टू कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, कैपिटल ए टेंड्स टू स्मॉल बी एप्सिलॉन, कैपिटल बी टेंड्स टू सी एप्सिलॉन, बी सी डी। So what will be the first of S? First of S will be first of A. First of A क्या है? Small b। दूसरा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन लिख नहीं दोगे, एप्सिलॉन पुट करोगे इस A की जगह, तो जैसे ही एप्सिलॉन पुट करोगे A की जगह, ये A गायब हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ S will become first of B। फर्स्ट ऑफ B क्या है? स्मॉल c और एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन लिखोगे, एप्सिलॉन पुट करोगे B की जगह, तो जैसे ही एप्सिलॉन पुट करोगे B की जगह, ये B गायब हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ S is first of C, first of S is first of C,
फर्स्ट ऑफ सी क्या है, डी, विल बी डी। अब यहां एप्सिलॉन नहीं, अगर यहां भी एप्सिलॉन होता तो ये और आगे जाता, जब तक रिड्यूस हो सकता है यू विल कीप ऑन गोइंग। यहां पे सी की जगह जैसे ही स्मॉल डी लिख दोगे, दिस इज ब्लॉक्ड बाय अ नॉन टर्मिनल, अब इसके आगे एक्सपैंड नहीं कर सकते। गॉट इट? एवरीवन? Let's take another example. Suppose S tends to small a, capital A, small b, capital B, small a tends to small a, capital A, small b, small b, B tends to C, D, small में C और D। देखो, my advice is whenever you are writing first and follow, जो कि you will be writing, always start from the bottom to top। जो जो आसान है उसका पहले लिख लो। फॉर एग्जाम्पल बी का सीधा सीधा आसान है, बी का फर्स्ट क्या होगा, सी एंड डी, या तो सी मिलेगा हमेशा या तो डी मिलेगा हमेशा स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में, इज इट? यस। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ए? फर्स्ट ऑफ ए इज आइदर स्मॉल ए और स्मॉल बी, है ना? या तो ए से हमेशा स्मॉल ए ही मिलेगा, ए से कुछ भी डिराइव कर लो, या तो ए से हमेशा स्मॉल ए मिलेगा स्टार्टिंग सिंबल पूरी स्ट्रिंग का, या तो हमेशा बी मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू एस। एस में टेल मी व्हाट विल बी द फॉर एस? ए सी डी, यस। एस से अगर इस प्रोडक्शन को देखो, इफ यू सी दिस प्रोडक्शन, डेफिनेटली इट इज ब्लॉक्ड बाय स्मॉल ए, सो यहां से तो फर्स्ट मिल गया स्मॉल ए, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रोडक्शन को देखो तो फर्स्ट ऑफ एस विल बी फर्स्ट ऑफ बी, और फर्स्ट ऑफ बी क्या है, फर्स्ट ऑफ बी इज सी एंड डी, सो इट विल बी सी एंड डी। सिंपल। चलो अब और ज्यादा कंसेंट्रेशन से सुनना फॉलो को, ठीक है? फर्स्ट में बहुत सिंपल था, अभी प्रैक्टिस होगी तो विद इन 3 to 4 सेकंड विल एबल टू कैलकुलेट फास्ट। फर्स्ट में कुछ नहीं करना है, बस जहां जहां इफ यू हैव वर्टेक्स लाइक दिस, इफ यू हैव वर्टेक्स लाइक दिस, ओके, देन द फर्स्ट ऑफ एस विल बी फर्स्ट ऑफ ए, और अगर फर्स्ट ऑफ ए में एप्सिलॉन आ गया तो एप्सिलॉन को यहाँ पुट कर देना, फिर आगे बढ़ जाना। और अगर यहाँ भी वर्टेक्स होता और इसमें भी फर्स्ट ऑफ बी एप्सिलॉन, तो यहाँ भी एप्सिलॉन पुट कर देते, एप्सिलॉन पुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अच्छा, एक केस ऐसा भी हो सकता है, चलो अभी फॉल के टाइम देखते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट में इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फर्स्ट वाज वेरी सिंपल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फॉलो। देखो फॉलो से पहले सम बेसिक रूल्स। अच्छा, टेल मी वन थिंग, व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए? स्मॉल ए इज अ नॉन टर्मिनल, व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए? अरे स्मॉल ए ओनली ना, इसका फर्स्ट क्या होगा, स्मॉल ए ही होगा। व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए बी सी? व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए बी सी? अगेन स्मॉल, राइट? दैट्स व्हाई ऐसा नहीं कि नॉन टर्मिनल्स का फर्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमारे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि नॉन टर्मिनल का फर्स्ट इज नॉन टर्मिनल ओनली, एंड फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन ओनली, है ना? इसीलिए जब भी एस टेंड्स टू, सपोज ए टेंड्स टू स्मॉल ए और एप्सिलॉन आ रहा है, यू राइट दैट ए का फर्स्ट ए भी होगा और ए का फर्स्ट एप्सिलॉन भी होगा। यहाँ कुछ पुट करने के लिए नहीं है एप्सिलॉन, ए का फर्स्ट कैन बी एप्सिलॉन, राइट? बट यही ए अगर कहीं यूज हो रहा था ऊपर एस के साथ कहीं यूज हो रहा होता, यू वुड हैव रिटन एप्सिलॉन इन प्लेस ऑफ एस। इसको गायब करते हैं यहां से और आगे बढ़ जाते हैं। फाइन, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद फॉलो, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से सुनो इस चीज को। सी, आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ स्टैक जिसके बॉटम में है डॉलर, एंड देयर इज अ इनपुट स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग पूरी पड़ी हुई है ए बी सी डी, जिसके बॉटम में है डॉलर। सो कैन आई से दैट द स्टार्ट सिंबल ऑफ माई ग्रामर, जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट विल ऑलवेज फॉलो बाय अ डॉलर, क्योंकि यही तो डालोगे स्टार्ट सिंबल से, प्रोडक्शन यही तो यूज करोगे। सो कैन आई से दैट दैट स्टार्ट सिंबल विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ डॉलर, क्योंकि करोगे कैसे,
इस स्टार्ट सिंबल को स्टैक में डालोगे ऐसे एस, इस स्टैक को जब पुश पॉप के लिए यूज करोगे तो यू विल स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल, बिकॉज वी नो दैट द ग्रामर हैज टू बी स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल। सो इस एस को यहाँ स्टार्ट सिंबल में डालोगे, सो ऑलवेज दिस एस विल बी फॉलोड बाय डॉलर, ऑलवेज। अच्छा, फॉलो का मतलब क्या होता है पहले ये बता दूंगा। फॉलो का मतलब कुछ नहीं होता, फॉलो का जैसे नाम का मतलब, इफ आई एम ट्राइंग टू राइट अ फॉलो ऑफ एस, then on the right side of my production, suppose this is my grammar, okay, this is my grammar, okay, small a, capital A, small b, capital B, small b, this is my grammar. So I want to calculate follow of s, follow of a, follow of b, इन तीनों के लिए फॉलो निकालना है। तो फॉलो का मतलब नाम से जैसे पता चले, if I want to calculate follow of s, so I will see the right side of the production and see what is following s, which non terminal is following s। तो यहाँ पे कौन सा नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहा है, स्मॉल ए। इफ आई वांट टू कैलकुलेट फॉलो ऑफ ए, इट मींस विच नॉन टर्मिनल इज फॉलोइंग ए, क्या फॉलो कर रहा है, राइट साइड में देखोगे यहाँ पे बी फॉलो कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ए वुड हैव बीन स्मॉल ए एंड फॉलो ऑफ ए इज स्मॉल बी। देखो नाम से पता चल रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ए मतलब ए जब भी डिराइव कर रहे हो, व्हाट विल बी द फर्स्ट वेरिएबल दैट विल बी देयर फॉर श्योर, स्मॉल ए विल बी देयर फॉर श्योर। बट व्हाट इज द फॉलो ऑफ ए, कैपिटल ए, जो ए को फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, स्मॉल बी। व्हाट विल बी द फॉलो ऑफ, yeah, dollar is there to know stack is empty or not. What will be the follow of capital B, ये अभी हम करेंगे। जब एक बार ये फर्स्ट फॉलो कर लोगे, we will create the parse table, उसके बाद ये पार्स करेंगे, we will parse the string कि होता कैसे है, we will do that. What is the follow of B, B को क्या फॉलो कर रहा है, कौन सा नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहा है, बोलो, स्मॉल b, राइट। तो ये तो नॉर्मल सी चीज हो गई, बस इसमें सब लोग एग्री कर रहे हो ना उससे, दैट ऑलवेज द स्टार्ट सिंबल विल follow a dollar, a dollar will always follow a start symbol, isn't it, because we will push the start symbol in the stack, stack में push करेंगे कोई किसी भी काम से पहले, तो अगर stack में push कर दिया तो obviously इसके बाद एक डॉलर आ रहा है, isn't it? So just keep this thing in mind, the follow of start symbol is going to contain dollar in all the grammars, हर ग्रामर में start symbol के बाद डॉलर आएगा, क्योंकि start symbol को push करते हैं stack में। अब एग्जांपल लेते हैं, वही वाला पहले वाला, S tends to A, B, C, D, A tends to say B or epsilon, B tends to C, C tends to small d, this is small c, okay, this is small c, this is capital C, and this is capital D. फर्स्ट तो निकालना आसान है, फर्स्ट ऑफ कैपिटल डी विल बी स्मॉल ई, फर्स्ट ऑफ सी विल बी स्मॉल डी, फर्स्ट ऑफ बी विल बी सी, फर्स्ट ऑफ ए विल बी बी एंड एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ एस विल बी फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ एस विल बी फर्स्ट ऑफ ए मींस बी, फिर एप्सिलॉन भी पुट करोगे तो फर्स्ट ऑफ एस विल बी फर्स्ट ऑफ बी मींस सी, सो बी एंड सी विल बी फर्स्ट, तो फर्स्ट तो हो गया तुरंत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉलो, follow, I have told you follow of start symbol will always be dollar, dollar तो होगा ही होगा। तो if I want to calculate follow of s, there will be dollar for sure, इसमें कोई दिक्कत, राइट। नाउ फॉलो कैसे निकालते हैं, वी सी ऑन द राइट हैंड साइड कि अगर s कहीं है और उसके बाद कोई नॉन टर्मिनल आ रहा हो, वी सी ऑन द राइट हैंड साइड इफ देयर इज s which is following any non terminal, पर यहां कहीं s दिख रहा है राइट हैंड साइड में, कैन यू सी s ऑन द राइट हैंड साइड, नो, सो बस डॉलर ही होगा, s का फॉलो विल बी डॉलर, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द फॉलो ऑफ a, हाउ यू विल कैलकुलेट द फॉलो ऑफ a, you will see on the right hand side a कहां पे आ रहा है, कैपिटल a, कैपिटल a is coming here, so what is following कैपिटल a, कैपिटल a को क्या फॉलो कर रहा है, you have to write the non terminal, है ना, तो कैन आई से, अब ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग, कैन आई से द फॉलो ऑफ कैपिटल a is nothing but the first of this whole bcd or the first of b, the follow of capital A is nothing but first of b, कोई दिक्कत किसी को,
बिकॉज हो क्या रहा है, इफ आई एम एक्सपैंडिंग दिस एस, आई वांट टू सी व्हाट विल फॉलो ए। इस ए के बाद यहाँ पे कौन सा नॉन टर्मिनल आएगा, तो यहाँ पे वही नॉन टर्मिनल आएगा जो इसका फर्स्ट है। इसका फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट है बी का फर्स्ट, और बी का फर्स्ट क्या है, स्मॉल सी। बिकॉज ऑब्वियसली यू विल रिड्यूस दिस, इसको ये ऐसे रिड्यूस करोगे स्मॉल सी से, सो ओनली स्मॉल सी विल फॉलो कैपिटल ए। मीन्स द फॉलो ऑफ अ सिंबल इज नथिंग बट जो उसका राइट साइड का फर्स्ट है वही है सिंपली, isn't it? So the first of A is nothing but the first of BCD, which is C. कोई दिक्कत है पूछो, यहीं पे पूछ लो अभी। क्लियर? नाउ लेट्स सी फॉलो ऑफ बी। कैसे देखोगे, राइट साइड में देखो बी कहां पे आ रहा है, राइट साइड में बी यहां पे आ रहा है, तो कैन आई से द फॉलो ऑफ बी इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑफ सी डी। बी को क्या फॉलो करेगा, जो सी का फर्स्ट है वही फॉलो करेगा। सी का फर्स्ट क्या है, सी का फर्स्ट है डी, सो फॉलो ऑफ बी विल बी डी। इसका मतलब है जब भी बी आ रहा है आपके प्रोडक्शन में, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय स्मॉल डी। इसका मतलब ये है, व्हाट इज द फॉलो ऑफ सी, C on the right hand side where C is coming. C is coming here. So the follow of C is nothing but the first of D. और first of D क्या है? First of D is E. तो follow of C is E. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस बनता है। What is the follow of D? अब D के बाद, अब D आ कहाँ है, पहले ये देखो D यहाँ आ रहा है। अब D के बाद लेकिन ना ही कोई नॉन टर्मिनल है, ना ही कोई टर्मिनल है। यस दिव्यांश, राइट। D के बाद कोई नॉन टर्मिनल है, ना ही D के बाद कोई टर्मिनल है। If you think, just think about this. Suppose you have started from here. Acha, can I write epsilon? If nothing is following D, can we write epsilon? This this was your input string. Okay, this was my input string जहां पे यहाँ डॉलर लगा हुआ है। आई एम सेइंग कि D के बाद कुछ भी नहीं है। अब D के बाद कुछ नहीं है तो क्या होगा, D के बाद इनपुट स्ट्रिंग में क्या पड़ा होगा, डॉलर, इजंट इट? इनपुट स्ट्रिंग का एंड कहां पे हो रहा है, आपके डॉलर पे हो रहा है ना। स्टैक के एंड में डॉलर है, इनपुट स्ट्रिंग के एंड में डॉलर है। सो यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे ए आया होगा, बी आया होगा, सी आया होगा, डी आया होगा इन योर इनपुट स्ट्रिंग। ए पॉप हो गया, बी पॉप हो गया, सी पॉप हो गया, सिर्फ डी बचा। अब मुझे देखना है डी के बाद क्या आ रहा है, तो डी के बाद कभी एप्सिलॉन आएगा ही नहीं। डी के बाद हमेशा, मतलब इफ देर इज नथिंग। अच्छा, ऐसा हमेशा भी जरूरी नहीं है कि अगर एक सिंबल, मींस इट इज नॉट ऑलवेज दैट डी के बाद हमेशा डॉलर ही आ रहा। क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसको एग्जांपल से बताता हूं, ज्यादा समझ आएगा। सपोज दिस इज कैपिटल एस, दिस इज कैपिटल एस, एंड इट इज फॉलोइंग से कैपिटल बी, सी, डी, ई, ऐसी कोई स्ट्रिंग है। नाउ आई विल रिड्यूस दिस कैपिटल एस। कैसे रिड्यूस करूंगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, और उसके बाद बी, सी, डी, ई। ये चीज तो यहां रहेगी। Now I want to calculate the follow of D. So can I say that the follow of D is nothing but the follow of S only? क्योंकि S को रिप्लेस कर दिया ABCD से, तो जो पहले S को फॉलो कर रहा था अब वो D को, राइट मोस्ट सिंबल को फॉलो करने लगेगा, isn't it? This is the general rule that follow of the rightmost symbol is going to be the follow of the leftmost symbol. This is very easy. For example, suppose मैं यहां पे हूं, I want to calculate the follow, यहां पे there is D also, capital D also here, यहां पे भी capital D, B tends to small c, capital D. Now I want to calculate the follow of D. Suppose ये capital B ऐसे होता in some string and after that it is written CDE. So पहले B का फॉलो क्या था, स्मॉल c था। ओरिजिनली B को फॉलो क्या कर रहा था, स्मॉल c। Now if I replace this B with this CD, what will be the follow of this D? This C only, जो B को पहले फॉलो कर रहा था। Yes or no? So the follow of the rightmost symbol is nothing but the follow of the leftmost symbol. अगर rightmost symbol के बाद यहाँ पे कोई भी टर्मिनल वेरिएबल कुछ नहीं है, so the follow of D will be follow of B only because of this. अब करते हैं इस क्वेश्चन को पूरा। So what will be the follow of D? पहले D देखो राइट साइड में कहां आ रहा है, D यहां आ रहा है,
डी के बाद कुछ भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल नहीं है, सो फॉलो ऑफ डी विल बी फॉलो ऑफ एस, सिंपल। स्टैक, इनपुट बफर सब भूल जाओ, फॉलो ऑफ डी विल बी फॉलो ऑफ एस ओनली। फॉलो ऑफ एस क्या है? डॉलर, सो फॉलो ऑफ डी विल बी डॉलर ओनली। क्लियर टू एवरीवन? सो करेंगे एक एग्जांपल और करो, एक एग्जांपल और करो। से s tends to bb slash capital C D and capital B tends to small a b epsilon। अच्छा एक चीज याद रखना, फॉलो में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आएगा, है ना। अभी इस केस को देखते हैं हम लोग। फॉलो कैन नेवर कंटेन एप्सिलॉन, व्हाई? बिकॉज इनपुट बफर में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आता है। इट कैन कंटेन डॉलर बट कभी भी एप्सिलॉन नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर राइटिंग ए एप्सिलॉन बी, यू विल नॉट से ए इज फॉलोइंग और ए इज फॉलोड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो गायब हो जाएगा ना यहाँ से। ए विल बी फॉलोड बाय फर्स्ट ऑफ बी ओनली। तो जब भी एप्सिलॉन मिलेगा उसको पुट कर दोगे वहां पे और देखोगे बाकी क्या बचा, जैसे फर्स्ट के लिए कर रहे थे। विद एग्जांपल इट विल बी क्लियर। दिस इज माय ग्रामर। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट। ऊपर से स्टार्ट मत करो, नीचे से स्टार्ट करो जो इजी इजी। तो फर्स्ट ऑफ सी विल बी, फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी विल बी स्मॉल सी एंड एप्सिलॉन, स्मॉल सी एंड एप्सिलॉन, राइट। फर्स्ट ऑफ बी विल बी, जल्दी जल्दी बताते जाओ, कैपिटल बी क्या होगा फर्स्ट? फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी ए एंड एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस, फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस विल बी फर्स्ट ऑफ बी, दैट इज ए एंड एप्सिलॉन। बट एप्सिलॉन लाके यहां पुट कर दोगे तो क्या बचेगा? बी। फर्स्ट ऑफ एस बताओ सब जल्दी, राइट। और फिर ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी नहीं है, दिस इज कैपिटल सी, दिस इज कैपिटल सी। स्मॉल सी होता तो यू वर राइट, एबीसी हो, दिस इज कैपिटल सी। तो अब इस प्रोडक्शन में देखो, फर्स्ट ऑफ एस विल बी फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी। फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी क्या है? स्मॉल सी एंड एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लाके यहां पुट कर दोगे तो बचेगा डी। सो दिस इज द फर्स्ट, फर्स्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब फॉलो की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल। व्हाट इज द स्टार्ट सिंबल? एस। ऑलवेज स्टार्ट सिंबल विल कंटेन अ डॉलर। अब देखो राइट साइड में कहीं एस आ रहा है और स्टार्ट सिंबल, इज देयर स्टार्ट सिंबल अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड? नो। सो बस डॉलर ही होगा स्टार्ट सिंबल का फर्स्ट। फॉलो, व्हाट विल बी द फॉलो ऑफ बी? सी राइट साइड में बी कहां कहां आ रहा है? सबसे पहले राइट साइड में बी यहां आ रहा है फर्स्ट प्रोडक्शन में, तो बी को क्या फॉलो कर रहा है? स्मॉल बी। और राइट साइड में बी कहां आ रहा है? राइट साइड में बी आ रहा है यहां, लेकिन अब इसके बाद कोई भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल नहीं है, सो द फॉलो ऑफ दिस बी विल बी फॉलो ऑफ दिस बी। अभी हमने देखा अगर राइट साइड में किसी वर्टेक्स के बाद कोई भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल नहीं है, देन द फॉलो ऑफ दैट विल बी द फॉलो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो कुछ नहीं, बी ही रहेगा, मतलब रिपीट नहीं लिखेंगे, इजंट इट? नाउ लेट्स सी द फॉलो ऑफ सी, कैपिटल सी। क्या होगा कैपिटल सी का फॉलो? पहले देखो राइट साइड में कैपिटल सी कहां कहां आ रहा है, पहले तो यहां आ रहा है, here the c is followed by small d। और राइट साइड में कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो द फॉलो ऑफ दिस कैपिटल सी विल बी द फॉलो ऑफ एलएचएस, जो कि सेम स्मॉल डी रहेगा। सो इट विल बी लाइक दिस ओनली। क्लियर? समझ आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत है? नाउ फॉर टुडे द लास्ट एग्जांपल, एंड दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल जिसका सबसे पहला हम लोग एलएल पार्सर भी करेंगे। ये हर जगह दिया हुआ है, आपकी अहो एंड सीटी बुक से लेके हर जगह दिया हुआ है। फर्स्ट टेल मी ये ग्रामर आई कहां से थी? ओके, व्हेन आई एम राइटिंग दिस ग्रामर, e tends to te dash, e dash tends to plus t e dash, this is plus t e dash slash epsilon, t tends to f t dash, t dash tends to star f t dash। इसका कर लिया अगर तुम लोगों ने फर्स्ट एंड फॉलो, मतलब पूरा आ गया, फिर आगे और कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं है किसी को। अपनी अपनी रफ कॉपी में डू इट फर्स्ट।
दिस इज द ग्रामर. फर्स्ट टेल मी ये ग्रामर आई कहां से थी? पहचानते हो उस ग्रामर को? फ्रॉम वेयर दिस ग्रामर केम? ये आई थी जब लेफ्ट रिकर्शन दूर किया था हमने, ई टेंड्स टू ई प्लस टी ई स्टार ई से. रिमेंबर? ई टेंड्स टू ई प्लस ई ई स्टार ई स्लैश आईडी वाली जो ग्रामर थी, उससे जब पहले एम्बिग्यूटी रिमूव की थी और लेफ्ट रिकर्शन रिमूव किया था, तो ये अनएम्बिगुअस और नॉन लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर मिली थी. गॉट इट? करो अब इसको जल्दी, जब हो जाए मुझे बताओ. So what is at the end of F? Where this is brackets के अंदर E, ID स्लैश ब्रैकेट्स के अंदर E. चलो मैं, हो गया, जल्दी बताओ. सबसे पहले आसान आसान वालों की ऑलवेज राइट फर्स्ट फर्स्ट. पहले फर्स्ट लिखो फिर फॉलो लिखो, क्योंकि फॉलो में मोस्टली यू आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट ऑफ सम अदर थिंग, है ना? तो पहले फर्स्ट की टेबल पूरी बनाओ फिर फॉलो बनाओ. और फर्स्ट में भी वो बनाओ जो सबसे आसान है. फॉर एग्जांपल एफ में सीधे दिख रहा है, द फर्स्ट इज गोइंग टू बी आईडी. अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ एफ? यहां से स्टार्ट करते हैं, इजी है, बॉटम टॉप जाएंगे. व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ एफ? खाली आईडी. इस प्रोडक्शन से तो आईडी मिल रहा है, इस प्रोडक्शन से क्या मिल रहा है? नॉन टर्मिनल की बात कर रहा हूं, ऑल द नॉन टर्मिनल्स. ओपनिंग ब्रैकेट भी तो है यहाँ. यस अमन. So the first of F is ID from the first production and opening bracket from the another production. This is the first of F. What is the first of T dash? इस प्रोडक्शन से मिलेगा स्टार, इस प्रोडक्शन से मिलेगा एप्सिलॉन. What is the first of T? First of T is nothing. चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखो. What is the first of E dash? First of E dash is plus and एप्सिलॉन. ये भी सिंपल, जो सिंपल सिंपल है पहले वो लिखो. These are simple. इन तीनों में किसी को दिक्कत? Any student, tell me. I will explain again. No issues. But it has to be very clear for everyone. तो ये तीन तो आसान से हो गए. अब चलो इसको देखो. What is the first of T? First of T is nothing but first of F. First of F क्या है? ID और opening bracket. So ID and opening bracket. This will be the first of T. अब सबसे टॉप पे जाते हैं. What is the first of E? First of E is nothing but first of T. What is first of T? First of T is nothing but first of F. What is first of F? First of F is nothing but ID and opening bracket. First of E is first of T. First of T पे जाएंगे. First of T is nothing but first of F. F पे जाएंगे. First of F is nothing but ID and opening bracket. Clear? Any doubts? Anyone? जितना तेज मैंने लिखा है, you are able to write in the same way, right? Right now. अब बात करते हैं सबसे बढ़िया चीज की, फॉलो की. ठीक है? फॉलो हमेशा स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करो. व्हाट इज द स्टार्ट सिंबल? कैपिटल ई. व्हाट विल बी द फॉलो ऑफ कैपिटल ई? सबसे पहले तो डॉलर होगा. सबसे पहले तो डॉलर होगा. इसको तो लिख ही देना है स्टार्ट सिंबल में. नाउ सी ऑन द राइट हैंड साइड वेयर ई इज कमिंग. ई कहां पे आ रहा है? कैपिटल ई. यहां पे आ रहा है. यू वांट टू राइट द फॉलो ऑफ कैपिटल ई, तो पहले तो ये स्टार्ट सिंबल है, सो इट विल कंटेन डॉलर. नाउ सी ऑन द राइट हैंड साइड वेयर ई इज कमिंग. ई इज कमिंग हियर. सो व्हाट इज फॉलोइंग ई? अ क्लोजिंग ब्रैकेट इज फॉलोइंग ई. सो द क्लोजिंग ब्रैकेट विल बी अनदर फॉलो. और कुछ है जो ई को फॉलो कर रहा है? और कुछ नहीं है. So these two will be the follow of E. Is it clear to everyone? बस ये लास्ट एग्जांपल है. Just give me 5 minutes. I will over the class. Okay. Now let's come to E dash. What is the follow of E dash? पहले देखो राइट हैंड साइड में E dash कहाँ आ रहा है? राइट हैंड साइड में सबसे पहले E dash यहाँ आ रहा है. So what will be the follow of E dash? Follow of E dash will be nothing but follow of E. E dash कहाँ आ रहा है? राइट साइड में E dash यहाँ आ रहा है. इसके बाद कुछ भी नहीं है. There is no terminal, non terminal.
सो फॉल ऑफ ई डैश विल बी नथिंग बट फॉल ऑफ ई। तो फॉल ऑफ ई क्या लिखा हुआ है, डॉलर एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स, तो ये पूरा का पूरा फॉल ऑफ ई डैश भी हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? ई डैश का फॉलो निकालना है तो राइट साइड में देखो ई डैश कहां कहां आ रहा है, तो स्टार्टिंग तो स्टार्ट करो, यहां आ रहा है सबसे पहले। इसके बाद देयर इज नथिंग, नो टर्मिनल नॉन टर्मिनल, सो द फॉलो ऑफ ई डैश द राइट मोस्ट सिंबल विल बी द फॉलो ऑफ एलएचएस। फॉलो ऑफ एलएचएस यानी ई क्या है, डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, सो ये डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट यहां भी आ जाएगा एज इट इज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब दूसरा देखो ई डैश और कहीं आ रहा है, ई डैश यहां भी आ रहा है। What is following this E dash? Nothing is following this E dash. So the follow of this E dash will be follow of this LHS. LHS में भी E dash है तो कुछ चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। LHS में कोई और सिंबल तो उसका फॉलो लिख देते हैं, पर यहाँ पे फिर E dash ही था तो कुछ चेंज नहीं होगा। और कहीं भी E dash नहीं आ रहा है तो फॉलो ऑफ E dash विल बी दिस ओनली। किसी को डाउट है बताओ, फिर से आई विल एक्सप्लेन। कुछ नहीं करना, राइट साइड में देखना वो सिंबल कहाँ आ रहा है। अगर उस सिंबल के बाद कोई इस तरह का नॉन टर्मिनल या टर्मिनल कुछ आ रहा है, अगर नॉन टर्मिनल आ रहा है तो वही टर्मिनल नॉन टर्मिनल सीधा आ जाएगा। अगर इसके बाद कोई टर्मिनल आ रहा होता तो इस टर्मिनल का फर्स्ट हो जाता है इसका फॉलो। अगर इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, तीन ही रूल है, ओनली ऑन थ्री रूल्स दिस होल फॉलो थिंग कैन बी कैलकुलेटेड। इफ अ टर्मिनल इज फॉलोइंग अ वर्टेक्स जिसका फॉलो निकालना है तो ये सीधा सीधा ये फॉलो हो गया। इफ इसके बाद कोई नॉन टर्मिनल होता लाइक दिस तो इस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट हो जाता है इसका फॉलो। और अगर इसके बाद कुछ भी फॉलो नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो जो यहाँ पे एलएचएस है उसका फॉलो इसका फॉलो हो जाएगा। यही तीन रूल के ऊपर चल रहा है पूरा। गॉट इट? नाउ टेल मी द फॉलो फॉर टी, थर्ड वन। टी का फॉलो क्या होगा? चेक ऑन द राइट हैंड साइड वेयर टी इज कमिंग। सबसे पहले टी यहां आ रहा है, टी इज कमिंग हियर, सो टी का फॉलो क्या होगा? टी का फॉलो विल बी फर्स्ट ऑफ ई डैश। अब फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या था? प्लस, ये तुम लोग क्या लिखे हो? अभी तो बताया रूल। अरे टी का फॉलो निकालना है। टी किसको फॉलो कर रहा है? ई डैश के फॉलो को फॉलो नहीं कर रहा है, ई डैश के फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। इफ यू डिराइव दिस, तो टी किसको फॉलो कर रहा है? टी इज फॉलोइंग द फर्स्ट ऑफ ई डैश। अभी तक यही तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं कि अगर ए बी ऐसा लिखा हुआ है, आई वांट टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ए, then first of a is nothing but the, or I want to calculate the fall of a, then fall of a is nothing but the first of this b। यही तो किया है अभी तक पहले एग्जांपल में भी। isn't it? this the answer you are telling ये तब होता जब यहाँ पे t के बाद e डैश नहीं होता, सिर्फ t लिखा होता, e टेंड्स टू t लिखा होता, तब t का फॉलो e का फॉलो हो जाता और डॉलर और ब्रैकेट नीचे आ जाता। राइट नाउ t को क्या फॉलो कर रहा है? t को e डैश फॉलो कर रहा है, यानी t को e डैश का फर्स्ट फॉलो कर रहा है। ई डैश का फर्स्ट क्या है? प्लस एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नहीं लिखोगे फॉलो में, प्लस लिखोगे पहले तो। यहाँ इस एप्सिलॉन को जाके पुट कर दोगे ई डैश की जगह, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे पुट करोगे ये ई डैश गायब हो जाएगा। अब टी का फॉलो क्या बन गया? अब टी का फॉलो बन गया ई का फॉलो। अब बना, गेटिंग इट? पहले देयर वाज ई डैश, पहले देयर वाज ई डैश, तो टी का फॉलो वाज द फर्स्ट ऑफ ई डैश। फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है? प्लस एंड एप्सिलॉन है, प्लस तो लिख दिया। एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे फॉलो में, एप्सिलॉन वी विल पुट इन प्लेस ऑफ ई डैश, तो ये ई डैश यहां से गायब हो जाएगा। अब टी के बाद कुछ भी नहीं बचा, तो अब टी का फॉलो क्या हो गया? टी का फॉलो इज नथिंग बट ई का फॉलो। नाउ ई का फॉलो क्या है? डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। इसमें किसी को दिक्कत? ध्यान से देखो, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है और ये हर जगह यूज होना है। तो प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ये तीन होंगे फॉलो ऑफ टी। एनी डाउट्स? टी का फॉलो निकालना था, तो टी का देखा राइट साइड में कहां आ रहा है, तो टी हमने देखा यहां आ रहा है। व्हाट इज फॉलोइंग टी? ई डैश इज फॉलोइंग टी, मतलब टी का जो फॉलो है दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑफ ई डैश। फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या था? प्लस एंड एप्सिलॉन।
तो प्लस तो लिख दिया बट एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे फॉलो में, वी विल पुट एप्सिलॉन इन प्लेस ऑफ ई डैश, तो ई डैश गायब हो जाएगा। और जब ई डैश गायब हो गया देन द फॉलो ऑफ टी बिकम्स, अब क्योंकि टी के बाद कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है फॉलो, एलएचएस होता है फॉलो। तीन रूल याद रखो खाली, जस्ट रिमेंबर थ्री रूल्स। इफ समथिंग इज रिटन लाइक ए ए, इफ समथिंग इज रिटन लाइक ए बी, इफ समथिंग इज रिटन लाइक ए। इस केस में द फर्स्ट, तीनों केस में मुझे सपोज फॉलो ऑफ ए निकालना है, तो यहाँ पे फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट स्मॉल ए, यहाँ पे फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ बी, बल्कि यहाँ पे भी बोलो अगर एक तरीके से, सो फर्स्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए ओनली, और फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए ही होता है, इसलिए डायरेक्टली बोल दे रहे हैं, वरना होता है ऐसा ही है जनरल। इसका एल्गोरिथमिक रूल लिखेंगे तो वी विल राइट कि फर्स्ट फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट वट एवर इज ऑन द राइट हैंड साइड उसका फर्स्ट। अगर एप्सिलॉन नहीं होता सो ओनली प्लस वुड हैव बीन द आंसर, यस अंशिका। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं होता ई डैश के फर्स्ट में तो बस प्लस होता आंसर टी का। सो यू हैव बेसिकली थ्री रूल्स कि इफ एनी नॉन टर्मिनल और टर्मिनल दीज थिंग्स आर फॉलोइंग एनी वेरिएबल, और ए का फॉलो निकालना है, कुछ नहीं जो राइट हैंड साइड में उसका फर्स्ट विल बी द फॉलो ऑफ ए, तो इस केस में फर्स्ट विल बी ओनली स्मॉल ए, इस केस में फर्स्ट विल बी फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी। अगर कुछ नहीं है, नथिंग इज फॉलोइंग, तो द फॉलो ऑफ ए विल बी फॉलो ऑफ कैपिटल ए। बस ये तीन रूल है जिसके ऊपर दिस इज वर्किंग। इसमें किसी को दिक्कत, टी का कैसे आया? क्लियर एवरीवन? अच्छा अभी काम खत्म नहीं हो, और भी देख लो, टी कहीं और भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो टी इज एग्जिस्टिंग, यहां भी तो है टी सेकंड प्रोडक्शन में, तो व्हाट इज फॉलोइंग टी? ई डैश इज फॉलोइंग टी, सो व्हाट विल बी द फॉलो ऑफ टी? फॉलो ऑफ टी विल बी फर्स्ट ऑफ ई डैश, वो हमने पहले लिख दिया प्लस, तो प्लस तो लिख दिया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ई डैश में अगेन एप्सिलॉन कम्स, तो यहां पे फिर एप्सिलॉन डालोगे, अब ये ई डैश गायब हो जाएगा। व्हाट विल बी फॉलो ऑफ टी? फॉलो ऑफ टी विल बी नथिंग बट फॉलो ऑफ ई डैश, वो पहले इंक्लूडेड है डॉलर और ब्रैकेट्स, तो कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन पढ़ना ऐसे है, चेंज हो भी सकता था, यहाँ हो नहीं रहा है बट हो भी सकता था। और देखो कहीं टी आ रहा है कहीं टी नहीं आ रहा, यहां समझे ना क्या हुआ? इस टी का काम तो खत्म हो गया, here we have done, now we have to see again where t is appearing, t is appearing here, so what is following this t? This e dash is following this t, so the follow of this t will be the first of e dash. What is the first of e dash? Plus and epsilon, तो प्लस पहले से ही था तो कुछ नहीं, एप्सिलॉन अगेन वी विल पुट इन प्लेस ऑफ ई डैश, तो ई डैश गायब हो जाएगा। नाउ नथिंग इज remaining after the t, so the follow of t will become follow of LHS, that is e dash, means dollar and closing bracket, so वो already included है तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? क्लियर? नाउ लास्ट, सेकंड लास्ट, व्हाट इज द फॉलो ऑफ टी डैश? राइट साइड में देखो टी डैश कहां पे आ रहा है, टी डैश इज कमिंग हियर, टी डैश इज कमिंग हियर एंड नथिंग इज फॉलोइंग टी डैश, सो द फॉलो ऑफ टी डैश विल बी फॉलो ऑफ टी डायरेक्टली। फॉलो ऑफ टी क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ, प्लस डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट, है ना, देयर वाज नथिंग फॉलोइंग टी डैश, सो द फॉलो ऑफ टी डैश विल बी फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज टी, तो ये उठा के एज इट इज लिख दिया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ो, अगेन हियर टी डैश इज कमिंग, again nothing is following t dash, so the follow of t dash will be follow of LHS, that is again t dash, so कुछ चेंज नहीं होगा, it will remain as it is, और कहीं t dash नहीं है, so it will be closed। अब लास्ट वाले का तुम लोग बताओगे, टाइम ले लो आराम से, सोच समझ के बताओ। बहुत बढ़िया, अभिषेक, दिव्यांश, नमन, सबका सही है। एवरीवन राइट द लास्ट वन और योरसेल्फ फर्स्ट, देन आई विल एंड द क्लास। तुम लोग का बहुत टाइम भी ले लिया मैंने। चलो टेल मी, वी हैव टू कैलकुलेट दी फॉलो ऑफ एफ। तो देखो राइट साइड में एफ कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग से देखो, यानी हियर एफ इज कमिंग, so what is the follow of f? Follow of f is nothing but first of t dash. What is first of t dash? Star and epsilon. Star तो आएगा बट epsilon नहीं लिखोगे, epsilon you will put in place of t dash, तो ये t dash गायब हो जाएगा। Now the follow of f becomes follow of t dash, और follow of t dash क्या था, ये तीन था, और कहीं f है और कहीं f नहीं है, दैट्स इट। इसमें किसी को दिक्कत लास्ट वाले में? एवरीवन डन? बस अगर ये एग्जांपल समझ आ गया, आप लोगों को फर्स्ट एंड फॉलो आ गया पूरा पूरा,
देयर इज नथिंग एल्स टू बी रिमेनिंग। बस ध्यान क्या रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। इन फर्स्ट, अगर कोई प्रोडक्शन सीधे सीधे एप्सिलॉन इट इज डिराइविंग लाइक दिस, सो यू विल इंक्लूड एप्सिलॉन इन प्लेस ऑफ एस ए। बट अगर यही ए कहीं और यूज हो रहा है लाइक दिस एंड यू वांट टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ एस, तो इस एप्सिलॉन को यहां पुट करोगे और देखोगे अब क्या बचा। ये हुई फर्स्ट की बात। फॉलो में देयर विल बी नो एप्सिलॉन, किसी के भी फॉलो में एप्सिलॉन नहीं होगा। स्टार्ट सिंबल विल ऑलवेज कंटेन डॉलर। बाकी किसी भी वर्टेक्स का जो फॉलो होगा दैट विल बी द फर्स्ट ऑफ वॉट एवर इज अपियरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दैट। अगर वो सीधा सीधा नॉन टर्मिनल है तो ऑब्वियसली दैट विल बी द आंसर। अगर वो सीधा सीधा कोई टर्मिनल है तो इस टर्मिनल का फर्स्ट विल बी द फॉलो ऑफ ए। और अगर कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है किसी टर्मिनल को, किसी वर्टेक्स को, ए के बाद कुछ भी नहीं है, so the follow of A will be nothing but follow of LH. Fine. Any doubts, anyone? Okay. So this was regarding first and follow. Now for the same grammar, same first and follow, we will create the parse tree and we will see how LL parser works in the next class.